Hello everyone, कैसे हो आप सब लोग? My name is Lohit Jindal. I'm back with the next session of NSCJS Maths. So today we'll be doing mensuration, right? So the first session of mensuration, okay? So let me give you a brief introduction about myself. So guys, my name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching for the past 8+ years to all those students for JEE Advanced and JEE Mains and for Mathematics Olympiad and NSCJS also now. So it has been good. So I have been able to teach many students and mentor many students to get very good ranks in all the competitive exams. All right. So बच्चों आज हम करने वाले हैं mensuration, which means the measurements of areas and volumes of various figures, right? So today we'll be seeing some questions, previous year questions, और कुछ हम ऐसे problems देखेंगे which are likely to come in NSCJS. ठीक है? So I hope everyone is ready with the notebooks and pens, right? साथ में रखो so that you solve alongside me, and also if possible please revise some of the topics, some of the formulas beforehand, है ना? थोड़ा revise करो so that you don't forget the formulas while doing the questions. तो वीडियो को पॉज करके देखना वहां पे, okay? So before seeing the solution, pause the video and solve the question yourself first, give it a try, then only watch the solution, okay? So let's do it without wasting any time. Let's start our session, okay? All right guys, so dekhte hain. Let's see our first question of the day. That's NSCJS 2014. That's the previous year of question of NSCJS 2014, okay? All right guys, so yes, this question actually guys is a bit calculative. मतलब इसमें calculation थोड़ा accurate करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, okay? So otherwise it will create problem because options बहुत close हैं, right? So let's understand it first. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. ये बनाया हुआ है. So if these are 6 equal designs, बच्चों, this is a regular hexagon, right? So if the radius of the cover is 4 centimeters, then cost of making designs at the rate of 10 rupees per centimeter square, right? We have to round off our answer to a nearest rupee. So क्या करते हैं बच्चों? इनको हम connect करते हैं, right? Let's join these. Okay, let's connect these first. Okay, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? So that you get an idea that actually if you join like this the diagonals, तो ये आपको क्या मिल रहा है? रेगुलर हेक्सागन तो है ही, that will pass through the or center of the circle, right? So guys, अब क्या होगा? Now this is the center, so all these sides are 4, right? So 360 को हम 6 parts में divide कर रहे हैं, so this angle will be 60, all the angles will be 60, right? So it's an equilateral triangle. So आपको क्या मिल रहा है? 6 equilateral triangles मिल रहे हैं whose side is 4 centimeters, right? So बच्चों, to find the shaded area, what I have to do is shaded area will be equal to area of circle minus area of hexagon, right? हमें ये करना पड़ेगा to find the shaded area, as you can see, है ना? हेक्सागन का एरिया सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे. So what is the area of circle? That's going to be pi r square minus area of hexagon is going to be, देखो, since there are 6 triangles, है ना, 6 equilateral triangles, so I'll subtract 6 times area of one equilateral triangle, which is √3/4 times side square. Now what is the side? That is the same as radius, right? Times r square. तो बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं? We can make our calculations a bit easier. This will cancel for 2, this will cancel for 3. So what we can do here is take r square common. तो अंदर क्या आएगा? Pi minus 3√3/2. So बच्चों कैलकुलेट करने के लिए what we can do here is pi का वैल्यू 3.14. So r square is how much? 4 square, that is 16. Okay, let me write 4 square instead. 4 square times pi is 3.14 minus 3 times 1.73/2. ठीक है? So बच्चे, what is 3 into 1.73? 3 into 1.73 is 5.19 divided by 2. So let me write 3.14 minus 5.19 divided by 2 will be 2.595, right?
So this quantity will be how much? 16 times the difference, that is how much? Point, that will be going to be 0.545, 0.545. ओके तो बच्चों आप सोच रहे होगे ये कैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, सो 8 इंटू 0.545 इंटू 2, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? सो 1.09, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 1.09, ठीक है। तो यहां तक तो एरिया आ गया, डोंट नीड टू मल्टीप्लाई राइट नाउ एग्जैक्टली, तो ये लिख लेते हैं। ओके बाकी कर भी सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो 8.72, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपको तो ढूंढना है कॉस्ट, कॉस्ट के लिए क्या करना है? ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द कॉस्ट गोइंग टू बी? सिंपल इनफ, 10 इंटू एरिया, दैट इज 8.72। सो बच्चों क्या आंसर आया? दैट विल बी ₹87.2। सो बच्चों क्लोजेस्ट आंसर कौन सा मिलेगा आपको इसमें? सी ऑप्शन, दैट्स द क्लोजेस्ट वन, राइट। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कैलकुलेशन, सो बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, यू कैन नॉट डू एनी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पता है आपको बच्चों, अगर आपने यहाँ पे 1.73, अगर आपने इसको 5.9 भी लिख लिया ना, या फिर यहाँ पे आपने 0.54 लिख लिया कैलकुलेशन के वक्त, आपका आंसर कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो इतने से चेंज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। सो यार कैलकुलेशंस हैव टू बी एक्यूरेट जहां पे ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू डू द कैलकुलेशंस एक्यूरेटली है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों मैं आपको जनरली इस चैप्टर के बारे में ये भी बताना चाहूंगा, मेंसुरेशन जनरली एनएससीजीएस के टर्म्स में अगर हम बात करें, इट्स एक्चुअली एन इजी टॉपिक, चैप्टर इजी है। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम मेनली आती है या तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग जाता है स्टूडेंट्स को, राइट, या तो टाइम बहुत लगता है कैलकुलेशंस के अंदर, उसमें अटक जाते हैं, तो टाइम वेस्ट हो गया, तो दैट इज बेसिकली लॉस ऑफ मार्क्स, है ना, अगर टाइम वेस्ट ज्यादा कर दिया। या फिर कोई फॉर्मूला गलत लगा लेते हैं, या फिर क्वेश्चन को करते हुए गलती कर दी, लाइक डायमीटर लिख दिया हुआ था, रेडियस लिख दिया उसको, या फिर रेडियस दिया हुआ था डायमीटर लिख दिया उसको, दिस काइंड ऑफ स्मॉल एरर्स, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, उनको इंटरप्रेट सही से करना है, एंड आई एम श्योर उसके बाद आप कैलकुलेशन तो कर पाओगे, ओके। बल्कि rather I would like to give you an advice which will work generally in all most of the questions। जो कैलकुलेशंस है ना, try to leave it for the last step। हमने भी देखो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन नहीं किया, we did only cancellation but solve नहीं किया उसको, है ना, वैल्यूज डाल के। why? बिकॉज अगर आप कैलकुलेशंस को लास्ट स्टेप तक लेके जाओगे, वहां पे जाके क्या होगा, फैक्टर्स टेंड टू कैंसिल, वेरियस फैक्टर्स कैंसिल होने की कोशिश होंगे, जिससे कि आपका जॉब इजी हो जाएगा, ओके। So I hope this question is done by everyone। तो NSGS 2014 का question है, okay। So let's see the answer on the next slide। So yes, the answer is C option, right? All right, so I hope this thing is clear। All right then, moving on to the next question, okay। All right, so this is also an NSGS previous year question, NSGS 2013 का question है, right? All right guys, तो पढ़ते हैं इसको। Around a circular lawn, okay, so I think there is some mistake guys, which is of semicircular shape, ये दे ही दिया है, so it's of semicircular shape, okay, lawn है which is of semicircular shape, a pavement of uniform width is laid, okay, उसके आसपास, okay, वो बना दिया हमने, pavement बना दिया। So if the ratio of the area of the lawn to the area of pavement is given to be 25:24, we have to find the ratio of the outer and inner perimeters of the pavement, okay। तो इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। So although my diagram may not be perfect in this case, so मैं जनरली बना देता हूँ। So this is let's say the lawn guys, है ना, ये lawn है आपका। So let's say इसका रेडियस स्मॉल r लेट कर लेते हैं, right? So this is the lawn, ठीक है, इसका एरिया आप निकाल लोगे, हाफ सेमी सर्कल है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पेवमेंट, जब जो पेवमेंट होगा वो इसके बाद एक फिक्स्ड विड्थ का जाएगा, राइट। सो दैट विल बी अनदर सेमी सर्कल लाइक दिस, ठीक है, एंड लेट्स से द रेडियस ऑफ दैट पेवमेंट इज कैपिटल R। सो नाउ दैट्स इजी। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ लॉन, पहले एरिया ऑफ लॉन समझते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ लॉन? ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, दैट इज पाई r स्क्वायर अपॉन 2, राइट। नाउ एरिया ऑफ पेवमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ पेवमेंट की अगर बच्चों बात करें, दिस इज द पेवमेंट, है ना, उसको रोड को बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से रोड बिछा दिया, ट्रैक बिछा दिया, उसको हम पेवमेंट बोल रहे हैं, राइट।
सो अब पेवमेंट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ कैपिटल रेडियस आर, है ना, रेडियस ऑफ कैपिटल आर माइनस द इनर सेमी सर्कल. सो दैट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं. सो बच्चों हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है, दैट द रेशियो ऑफ these two things, these two equations, let me name in 1 and 2. So ratio of the equations 1 by 2 is given to be 25 by 24, right? ये करना है हमें. So let's put it. So pi by 2 तो कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे इन दोनों को. pi by 2 term will get cancelled. You will be left over with r square divided by capital R square minus small r square equal to 25 by 24, right? So that is it. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, what you will get, 24 times r square is equal to 25 r square minus 25 times small r square. So this will give you 49 r square equal to 25 times capital R square. So यहाँ पे जाके बच्चों क्या करोगे आप स्टूडेंट फ्रेंड्स, सो आप स्क्वायर रूट कर लो, you'll get 7 times r is equal to 5 times capital R. देखो आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, because you know the radii are in positive values only, है ना. So this is one relation that you are getting, है ना. So this will give you r upon r is equal to 7 upon 5. You are getting this thing, है ना. So बट आपको फाइंड क्या करना था, रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर्स ऑफ द पेवमेंट. बच्चे व्हाट इज द आउटर अपॉन इनर पेवमेंट? ओके, आउटर पेरीमीटर अपॉन इनर पेरीमीटर. यहां पे आपको एक बात समझनी है बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, इट्स पाई आर प्लस 2r, राइट? क्योंकि एक तो कंप्लीट सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ, दैट इज पाई आर प्लस 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ और पेरीमीटर इन दिस केस. तो देखो उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार फॉर्मूला. पेरीमीटर इज गोइंग टू बी पाई आर प्लस 2r, है ना. सो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला, यू कैन टेक r कॉमन पाई प्लस 2, ठीक है. तो आउटर पेरीमीटर क्या है, उसके लिए रेडियस r है, सो दैट विल बी r टाइम्स पाई प्लस 2. इनर के लिए स्मॉल r टाइम्स पाई प्लस 2. सो सी पाई प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, so pi plus 2 will get cancelled. So you're left over with actual ratio of r upon r, और वो तो आप फाइंड कर चुके हो ना, 7 by 5. So आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 upon 5. So ideally you could think कि inner and outer perimeters of the pavement are actually in the ratio of their radii only. तो radii का रेशियो आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, which is 7 by 5. So I think A option should be your answer, ठीक है. तो आपको ये देखना है. आई होप सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. ओके, सो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में जो गलती हो जाती है, फिर व्हाट इज द चैलेंजिंग थिंग, इज दैट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एग्जैक्टली. देखो डायग्राम दिया नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको खुद डायग्राम बनाना है, समझना है. सो दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट कि आपको समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है ना, कि बनाना क्या है, क्या फिगर बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन में. सो यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक है. ऑलराइट देन, आई होप दिस इज क्लियर. सो आगे बढ़ते हैं. सो थोड़ा प्रॉपर डायग्राम दिख रहा है अभी आपको, so it will be able to understand, right? So A option is your answer. All right then. So guys आगे बढ़ते हैं to our next question. Okay, it's a bit interesting. इसमें आपको coordinate axis बनाना पड़ेगा. Okay, let's draw this axis. ठीक है, so that is it. Points mark करते हैं. A point is -5,5, so that is going to be round about here. ठीक है, this is A, -5,5. B point is 4, -5, right? 4, -5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, that is 4, -5. This is point B. और and C point is 4, 5. X coordinate यही है, Y coordinate यहाँ पे आ गया, so that is C 4, 5. So बच्चों अगर आप देखोगे, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा, so that forms a right angle triangle, है ना. So it's like something like this. So it's a right angle triangle because x y coordinate same है इन दोनों का x coordinate same है, right? B और C का x coordinate same है, A और C का y coordinate same है. So it's a right angle triangle first of all. Question में क्या दिया है, now A B C be the vertices of the triangle.
if a circle passes through the vertices of triangle ABC, okay, अगर एक circle ABC के through pass कर रहा है, then the area lying inside the circle but outside the triangle ABC. Okay, so guys, although I may not be able to draw the diagram very much properly, तो but मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं circle draw करने की. So the circle will be something like this. So pass कर रहा है ABC से, right? Okay. तो बच्चों यहाँ पे समझना क्या, आपको एरिया तो ये वाला ढूंढना है जो ट्राइंगल के बाहर है और सर्कल के अंदर है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है. सो गाइस कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एक चीज हमें समझनी है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज इट्स दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी जो होगा वुडंट दैट बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, मुझे रेडियस भी तो फाइंड करना है सर्कल का. सो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो अगर मुझे डायमीटर चाहिए या रेडियस चाहिए, आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. और वो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी. सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, वो कितना है -5 से 4, सो दिस लेंथ इज 9 सेंटीमीटर्स, 9 यूनिट्स, है ना. y कोऑर्डिनेट तो सेम है, डिफरेंस इज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ CB, x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कितना है, 10 है, राइट. सो व्हाट इज AB स्क्वायर, so I can see AB square is equal to BC square plus AC square. So BC is how much, 10 square plus 9 square. So that is 181. ठीक है, तो AB square हमारे पास आ गया. So we need not worry about it कि हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. Don't worry about this for now. ठीक है, लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now what is the area of circle? ठीक है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी कैलकुलेशन नहीं करने के लिए. देखो देखो करना ही पड़ा तो लास्ट स्टेप पे तो जाके कर ही लेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है. बट क्या पता उससे पहले अपना कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो स्क्वायर रूट ना ही करना पड़े, ठीक है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल डिफाइंड एज पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर स्क्वायर है, AB/2 का होल स्क्वायर, राइट. सो दैट इज पाई टाइम्स AB स्क्वायर अपॉन 4. तो देखो AB स्क्वायर का ही वैल्यू डालना है ना, मुझे जरूरत ही नहीं है AB का, ठीक है. So that is going to be pi times 181/4. So again, no need to calculate any further. ठीक है. So these much square units. ठीक है. Now area of the triangle, delta लिख लेता हूँ उसको. That is half base into height. So half into 9 into 10. That's 45. Right. So आपको required area A लिख लेता हूँ उसको. So required area A is area of the circle minus area of the triangle. Right. So 181 pi/4 minus 45. तो उसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, नथिंग डिफरेंट, कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको. सो 181/4 पाई minus 45. So C option is looking like your answer. ठीक है, so the answer should be option C. Let's see, we have not made any mistake, right? AB square is 9 square plus 10 square, 181. That's correct. Area of the circle is pi r square, so r is AB/2. That is also correct. So fine, I think we have not made any mistake. It's fine. Okay, so I hope this is clear. तो चेक करते हैं. Okay, so yes, C option is our answer, right? So you can see the calculations also. So right, so we don't have to actually take the square root or anything. ये ध्यान में रखना है, मैंने बताया ना लास्ट स्टेप पे जाके कैलकुलेशंस करो, that will be fine. All right then, next question guys. A metallic sheet. Okay, this is a question which I think is a basically जो question likely है, कभी आ सकता है NSCGS में, because it is a good question. आप देखोगे अगर ध्यान से पढ़ोगे. पहले हम देखते हैं क्या मतलब है इसका. A metallic sheet is of the rectangular shape. ठीक है, तो बना लेते हैं एक rectangular shape. Okay, then with dimensions 48 and 36. So let's write it. This is 48 centimeters, this is 36 centimeters. ठीक है. From each of its corner a square of 8 centimeters is cut off. 8 centimeter side का square cut off कर दिया आपने, ठीक है. So let's say like this. So हर साइड से आपने, हर कॉर्नर से आपने 8 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर कट ऑफ कर दिया, राइट. सो दिस इज 8, दिस इज 8. सो अब आप क्या करोगे. ओके, नाउ whatever figure is left है ना, an open box is made of the remaining sheet, find the volume of the box.
तो बच्चों कर कैसे रहे हैं, बॉक्स कैसे बनेगा, आपने मान लो ये स्क्वायर्स कट ऑफ कर दिए है ना जो कॉर्नर्स पे हैं, तो बॉक्स कैसे बना एक्चुअली में, ठीक है। सो एक्चुअली बॉक्स इज मेड समथिंग लाइक दिस, इनको फोल्ड कर दिया आपने, ओके। सो द डायग्राम इज नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट बट कुछ ऐसा केस हो रहा है, ठीक है। सो जो ये रेड लाइंस हैं उसके अलोंग आपने उनको फोल्ड कर दिया, समझ रहे हो, ओके। सो जो ये रेड लाइंस है उसके अलोंग आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, और हर जगह से जो बचा पोर्शन, लाइक इसको फोल्ड कर दोगे ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, सो यू विल गेट अ बॉक्स, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉक्स, जितना आपने ऊपर उठाया 8 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ द बॉक्स इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों बॉक्स का मुझे बेस का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, बेस के डायमेंशंस पता होने चाहिए। सो सी दिस इज 36, सो 8 लेंथ की साइड्स आपने लेफ्ट और राइट से रिमूव कर दी, सो 36 माइनस 8, दिस इज गोइंग टू बी 36 माइनस 8, सॉरी 36 माइनस 16 और 8 into 2, दैट इज गोइंग टू बी 20। सो विड्थ हो गई 20 आपकी, हाइट कितनी होगी सिमिलरली 48 में से 16 माइनस करोगे तो 32, राइट। सो योर डायमेंशंस नाउ आर, जो बॉक्स बन गया अब आपका उसकी बेस की डायमेंशन है 32 एंड 20। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, 32 into 20 into height is 8, that's it। अब कैलकुलेशंस इजी कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली मल्टीप्लाई। देखो 32 होता है 2 पावर 5, 8 होता है 2 पावर 3 एंड 20 को लिख सकता हूँ 2 into 10, सो दिस इज 2 पावर 9 into 10, और 2 पावर 9 होता है 512 into 10 is 5120, सो डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो कैलकुलेशंस भी इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व कर सकते हो, एंड सी इन दिस क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना, कि बोर्ड के साथ या शीट के साथ आप बॉक्स बन कैसे रहा है। यू रिमूव दो स्क्वायर्स एंड यू आर फोल्डिंग द पोर्शंस, जो बाहर बचे के प्रोट्रूडिंग पोर्शंस को फ्लिप कर दिया टू मेक इट अ बॉक्स, ठीक है। एंड देन आपको उस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड, है ना, मल्टीपल स्टेप्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को प्रॉपर्ली, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, सो दैट इज द ऑप्शन डी एज यू कैन सी, ठीक है, ऑलराइट। सो ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी समझने में इनको, बट ऑल्दो इट इज वेरी इजी, है ना। चलो पढ़ते हैं। So a classroom is 5 meters long, 2.5 meters broad and 3.6 meters high, ठीक है। Class is a form of a cuboid, आपको dimensions given है। So if each student is given 0.5 meter square of the floor area, जो जमीन पे उसको 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया बता दिया पर स्टूडेंट, पूरा रूम में दे दिया ऐसे, then how many cubic meters of air would each student get, उसको वॉल्यूमेट्रिक कितना वॉल्यूम मिल पा रहा है, राइट। तो इसमें मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, इजंट इट। बाकी का अगर आप ध्यान से सोचोगे इसको, इफ यू थिंक अबाउट इट वेरी लॉजिकली, देखो लेट्स से आपने रूम के अंदर हर 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया में बच्चों को बिठा दिया, भर तो दिया, रूम भर दिया, है ना। तो बच्चे के ऊपर स्टूडेंट को तो नहीं रखोगे ना, राइट। सो अब आप एक बात सोचो, एक बच्चे के लिए वॉल्यूम कितना मिल रहा है उसको एयर का, यू कैन कंसिडर 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन द फ्लोर मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसके ऊपर का पूरा एरिया का वॉल्यूम उसका है, राइट। दैट इज ट्रू फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना। तो उसमें पता लग जाएगा ना कि एक बच्चे को कितना वॉल्यूम चाहिए, बाय दैट लॉजिक, है ना। अगर हम इस लॉजिक से सोचें, देन आई सिंपली नीड द एरिया जो एक स्टूडेंट को चाहिए इनटू हाइट ऑफ द रूम, दैट्स इट, है ना। सो बाय मेथड 1 आई विल गेट दैट 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया, ओके, वॉल्यूम पर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं वॉल्यूम पर स्टूडेंट, है ना। तो दैट विल बी 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया जिसपे जितना बच्चा ऑक्यूपाई कर रहा है इनटू द हाइट ऑफ द रूम, दैट इज 3.6, सो दैट शुड गिव मी 1.8 मीटर क्यूब, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट आंसर शुड बी बी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है। दिस इज द बेस्ट लॉजिकल वे आई थिंक इसके लिए जो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ध्यान से सोचो, जो रेक्टेंगल रूम है, बेस है रूम का, उसके ऊपर 0.5 मीटर स्क्वायर पर बच्चा यूज कर रहा है, हर बच्चा, है ना।
तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो हर बच्चे के पास 0.5 एरिया है, तो उसके ऊपर की सारी जगह खाली है, तो वही यूज कर रहा है वो वाला एयर, है ना, अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सो इनटू हाइट करोगे तो पूरा वॉल्यूम मिल जाना चाहिए। नाउ another way, जनरल वे क्या होगा समझने का, इन दैट केस we'll have to find the number of students, है ना। सो उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let's say that is n, that will be area of the floor upon 0.5, है ना, total area that is 5, okay, उसको dimensions लिख लेते हैं, okay, let's name this as L, this as B, है ना, and this as H. So area of the base is L into B upon 0.5, ठीक है, this is the number of students, or you can say 2 times LB, है ना। बस एक चीज चेक कर लेना, इज दिस अ राउंड नंबर, जनरली आना चाहिए, बिकॉज 5 into 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, वो तो 2 times LB हो गया, तो राउंड फिगर तो आएगा ही, ठीक है। ऑल राइट देन, सो दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वॉल्यूम ऑफ एयर पर स्टूडेंट जो हमें फाइंड करना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अब वॉल्यूम क्या है, LBH, that is LBH divided by number of student is 2 times LB. So देखा आपने क्या हो रहा है, इवेंचुअली हो क्या रहा है, L into B is getting cancelled, है ना। आंसर क्या आ रहा है, H/2, और यू कैन से 0.5 into H. सो मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। सो द आंसर इज H/2, that is 3.6/2, so 1.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर स्टूडेंट। सो आंसर सेम आ रहा है, बट यू थिंक, अगर आप सोचो ऐसा क्वेश्चन NSCGS में आएगा, अगर आप इस अप्रोच से करोगे, आपका 1.5 मिनट से 2 मिनट्स जाएगा समझने में, है ना, करने में 1 से 2 मिनट के अंदर टाइम जाएगा, एटलीस्ट 2 मिनट तो जाएगा ही, 1.5 से 2 मिनट। बट वहीं पे अगर आप अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई कर रहे हो और ये वाला मेथड यूज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना, कि 0.5 मीटर स्क्वायर पर बच्चा यूज कर रहा है सरफेस पे, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हमें कैलकुलेट करना है, इक्वली डिवाइडेड है, तो उसके ऊपर तक का हाइट देखेंगे तो उसी में आ जाना चाहिए, राइट। सो बेसिकली समझ रहे हो, हर बच्चे का 0.5 मीटर स्क्वायर का लेट्स से स्क्वायर है, you have defined them to be so many cuboids, या फिर बहुत सारे पाइप्स डले हुए हैं उस रूम के अंदर, ऐसे सोच सकते हो, वर्टिकल पाइप्स, है ना, वर्टिकल कंपार्टमेंट्स ऐसे सोच सकते हो। तो हर बच्चे के लिए एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर वॉल्यूम कितना है वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। तो आंसर बहुत क्विकली आ रहा है, एक ही बार में आ रहा है, हमें बेस और हाइट, बेस का एरिया चाहिए भी नहीं था, 5 into 2.5 का डायमेंशन चाहिए भी नहीं था हमें एग्जैक्टली, है ना। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो लेट्स सी द आंसर ऑल्सो। हमने 2 मेथड से किया है, तो आंसर तो सही होगा। सो बी ऑप्शन इज अवर आंसर, राइट। सो हियर इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो इन द सॉल्यूशन आल्सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन फाउंड एंड देन द वॉल्यूम हैज बीन फाउंड, बट आई हैव टोल्ड यू सम अदर वे, है ना, जो मैंने बताया। आई होप आप सोचना, उस पे विचार करना, अप्लाई सम माइंड। आई होप यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस लर्नड अ लॉट, है ना, and understood all the things. If not, please watch the replay again, watch the video again, okay. I hope you will be able to understand, and do revise the notes first, or do revise the theory relevant to this chapter from your books, textbooks of class 9th and 10th. In that you will find all the formulas relevant to these questions, right, or the areas of circles and everything, okay. All right then guys, I hope everything is good with the next session of mensuration, okay. Thank you guys, bye bye, take care, good night.